Good morning, student. Welcome back to our science class for class 6. This is our new chapter, chapter number 4, sorting materials into groups. Okay. So, in this chapter, we will study about some materials that are present in our surrounding and their sorting materials means sorting some different kinds of matter into their groups according to their physical appearance and physical appearance having their hardness, softness, solubility, insolubility, है ना. तो these are the some kinds of properties where we objects are placed according to their properties. Okay, so let's start. Object around us. So we have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of object everywhere we see around us. A chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensil, books, clothes, toys, water stones and many other object. So यहाँ पर जो है बहुत सारे मतलब हमारे आसपास बहुत सी ऐसी वास्ट वैरायटी हैं ऑब्जेक्ट की जो कि कहीं भी हमें देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने बात की चेयर की, कुकिंग यूटेंसिल की, साइकिल की, बुक्स की, क्लॉथ्स की एंड टॉयस एंड वाटर एंड सम स्टोन्स की. ठीक है, देन ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप, कलर्स एंड यूजेस. ओके, all object have their different shape and different uses and different colors. So look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football and a glass marble. तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा, लुक अराउंड, अपने आसपास देखिए, देन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप, और ऑब्जेक्ट को जो है जो राउंड इन शेप में उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है. तो जैसे हमने ये बात की किसकी, रबर बॉल की, देन फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल जो कि जनरली हैविंग राउंड इन शेप. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, orange, some fruits, and guava, earthen pitcher like घड़ा, and ये सारी चीज़ें जो हैं जिन्हें हम राउंड शेप ऑब्जेक्ट में हम शॉर्ट ग्रुप में ऐड कर सकते हैं. ठीक है, देन वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल. अब देखिए ये समझें कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिन्हें हम जनरली ईट कर सकते हैं. एडिबल मीन्स ईटेबल, है ना. तो वी माइट इंक्लूड ऑल दी आइटम्स दैट वी हैव listed in table 1.2, 1.1 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shape objects we just listed out are also in this group. Okay, let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics, buckets, lunch box, toys, water, containers, pipes and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group object. In the above example we have grouped object on the basis of their shape or the materials they are made from. Okay, all objects around us are made of one or more materials. These materials may be glass, metals, plastics, wood, cotton, पेपर, मड और सॉइल. अब देखिए यहाँ पर जो हमने डिफरेंट मटेरियल्स की हमने बात की, टॉयज़, बकेट्स, कंटेनर्स, पाइप्स एंड सम मार्बल्स. तो दीज मटेरियल्स आर मे बी हो सकते हैं वो किसके, ग्लास से बने हुए, मेटल्स से बने मटेरियल्स एंड प्लास्टिक्स मटेरियल, देन वुड मटेरियल एंड कॉटन मटेरियल, पेपर मटेरियल एंड सम सॉइल मटेरियल्स. ओके, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी आप ये थिंक कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए एक्टिविटी फर्स्ट, यहाँ पर हमें क्या करना है, कलेक्ट, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज अ पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. ईच ऑफ अस कुड गेट सम everyday object from home and we could also collect some object from the classroom or from outside the school. What will we have in our collection? अब देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है जिन्हें हमें कलेक्ट करना है जो कि हमारे क्लासरूम के हो सकते हैं या फिर आउट ऑफ क्लासरूम हो सकते हैं. देन उन कलेक्शन में हमने क्या क्या कलेक्ट किया है वो हमें देखना है. जैसे इन क्लासरूम हमें मिल सकता है चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर एंड अ hammer, nail, saw, spoke of a wheel and bat,
मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ये सारे जो है हमें आउटसाइड से मिलेंगे, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, फॉर एग्जाम्पल वॉल, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके बारे में सोच सकते हैं बट उन्हें जो है हम वी कैन नॉट ब्रिंग टू दी क्लासरूम, उन्हें हम क्लासरूम में लेकर नहीं आ सकते। जैसे हमारा है वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब हमने जो जितने भी ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए हैं उन्हें हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, मीन्स 2 ग्रुप में उन्हें जो है पुट करना है। कौन कौन से ग्रुप में? एक है हमारा पेपर वाला ग्रुप, देन सेकंड है वुड ग्रुप, ठीक है। जो लकड़ी से बनी हुई उसे लकड़ी वाले ग्रुप में, देन जो पेपर से मेड अप है उसे पेपर से, ठीक। तो दिस वे we have divide all object into 2 group. One group has the object that are made from paper or wood, while the other group has the object that are made of these materials. Okay, similarly we could separate the things that are used for preparing food. Let us be a little more systematic. List all objects collected in table 4.1. Try to identify the material that each one is made of. It would be fun to make this a large table. Okay, then collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such case, discuss with your friends, teacher and parents to identify the materials. Okay, सो ऑब्जेक्ट एंड दी मटेरियल्स दे आर मेड अप। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट उनके नेम है, देन जो मटेरियल जिससे वो मेड अप हैं वो बने हुए हैं यहाँ, ठीक है। टेबल में यहाँ शो कर रहा है क्या है, प्लेट। जो हमारी थाली है वो किससे है, वो किस मटेरियल से मेड अप है, वो उससे बना हुआ है, वो स्टील से भी हो सकती है ना थाली, देन ग्लास वाली भी हो सकती है, देन प्लास्टिक की थाली हो सकती है, एनी अदर ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है। देन पेन हमारा है वो प्लास्टिक एंड मेटल इससे बना हुआ है, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट, जैसे हमने लिया क्या, चौक। तो चौक जो है वो हमारा क्या है, किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है हमारे लाइमस्टोन या फिर हम कहें चूने से, है ना, ये हम कह सकते हैं। देन हमारा बुक हमारे किससे मेडअप है, ये है प्लांट से, है ना, पेपर से। ये फिर प्लांट ना कह के हम यहाँ पर पेपर कहते हैं, बुक, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें हमें बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी में जो है मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं और मटेरियल्स को ऐड करना है किसमें, इन सबको कॉलम में हमें रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम दी सेम मटेरियल। अब देखिए सेम मटेरियल जैसे कि वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन। तो वुड से बने हुए कुछ ऑब्जेक्ट हैं उनके हमें नेम यहाँ पर दिए हैं, जैसे चेयर ही भी वुड से है, टेबल, प्लफ, बल जो हमारा ब्लॉक कार्ट है एंड इट्स व्हील, ये भी हो सकता है। देन पेपर से हमारा बुक है, नोटबुक है, देन न्यूज़पेपर, टॉय, कैलेंडर्स, है ना। और लेदर से बने हुए हमारे शूज़ हो सकते हैं, देन हमारा बैग हो सकता है ना। देन प्लास्टिक से बॉटल, टेबल है, चेयर है ना। देन कॉटन के हमारे क्लॉथ्स। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पुट करने हैं, ठीक। तो व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज tables? First we grouped object in many different way. We then found that object around us are made of different materials. Okay, at time an object is made of a single materials. An object could also be made of many materials, and then again one materials could be used for making many different object. तो देखो हमने ये जो टेबल शो किया उसमें हमने बताया कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है, देन डिफरेंट मटेरियल जो है मिलकर के एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, देन जो एक ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल मटेरियल से भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। देन एक जो हमारा सिंगल जो मटेरियल है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट फॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये हमने देख लिए एग्जाम्पल। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट, इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। अब देखिए यहाँ पर हमने जो ग्रुपिंग तो कर दी, लेकिन अब हमें जो है इन मटेरियल्स को डिटेल में जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स में क्या है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ। देखिए आपने कभी सोचा है कि जो हमारा टम्बलर है इज़ नॉट मेड ऑफ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ, क्यों? तो चलिए हम यहाँ सोचते हैं, रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3rd एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ
liquid. Therefore, would it not be silly if we were to make tumbler out of cloth? What we need for the tumbler is a glass, plastic, metal or other such material that will hold water. Similarly, it would not to be wise to use paper like material for cooking vessels. देखो, अब यहाँ पर ये बात करें कि जो हमारा टम्बलर है, जो क्लॉथ टम्बलर है, वो जनरली वुड से क्यों नहीं बना होता? क्योंकि ये हमारा क्या है, सॉरी, वो पीस ऑफ क्लॉथ से क्यों नहीं बना होता? क्योंकि जो हमारा टम्बलर है हम उसका यूज़ करते हैं वाटर होल्डिंग के लिए, है ना, देन बहुत सारे ऐसे काम है उसके लिए। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए आप इस पिक्चर में देख ही रहे हैं, यूजिंग अ क्लॉथ टम्बलर, जो हमारा क्लॉथ टम्बलर है उसका हम यूज़ कर रहे हैं वाटर होल्ड करने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। So we see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. तो ये किस पर बेस्ड है? ये जो है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एंड उसके यूज़ पर बेस्ड है कि हाँ उसकी प्रॉपर्टी कैसी है और उसका यूज़ जो है हम किन किन पर्पस पर हम कर सकते हैं, ठीक है, उस पर बेस्ड है। तो इसी वजह से जो है हम सारे मटेरियल्स जो होते हैं हमारे आसपास उनको हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम मटेरियल्स को ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला कौन सी प्रॉपर्टी है? अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वुड looks very different from iron. Iron appears different from copper or aluminum. At the same time, there may be some materials between iron, copper and aluminum that are not there in wood. देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मटेरियल्स जो है जनरली एक दूसरे से उनका जो लुक है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम ईच अदर. ओके, वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, देन आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम. तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसको हमें करने के बाद समझ में आएगा कि मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल. Some metal often lost their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rod to see if they have luster. तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मटेरियल्स जिनमें जनरली क्या होते हैं वो साइनी सरफेस के होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो मेटल्स होते हैं, जो कि कुछ एग्जांपल्स दिए हैं लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड. ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल हैं मेटल्स के, ठीक है, जो कि जनरली साइनी सरफेस कंसिस्ट करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, ओके, बीकर्स. यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं हार्डनेस की. अपीयरेंस की हमने बात की, जिसमें अपीयरेंस में जनरली जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, मेटल होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, साइनी इन नेचर में होते हैं, है ना. तो वो जो साइनी होंगे वो होंगे मेटल्स, और जो नॉन साइनी होंगे हमारे नॉन साइनी वो होंगे हमारे नॉन मेटल्स, ठीक है. जैसे हमारा वुड हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया, ये सारे हमारे नॉन मेटल हैं, ठीक. देन हार्डनेस, तो ये हमने ये प्रॉपर्टी की हमने यहाँ पर बात कर ली, ठीक है. तो इसके आगे जो है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.